the government is selling the spectrum is free of charge. असल में जो यूज केसेस है समथिंग दैट वुड मेक फाइनेंशियल सेंस, वो कौन से यूज केसेस हैं? 5G का जो असल सेंस है, इट इज़ अबाउट बिग वैल्यू एड टू द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ एंटरप्राइज. 3G is considered to be a dead technology now. 5G जो है उसकी रिक्वायरमेंट तब है जब आपने कोई भी ऑपरेशन जो है वो रियल टाइम में करनी है. गवर्नमेंट ने कोई इंसेंटिवाइज किया है इस प्रोसेस को? गवर्नमेंट ने इस हद तक तो इंसेंटिवाइज कर दिया, स्पेक्ट्रम दे दिया, प्राइस कम कर दी. आजकल टेक्नोलॉजी जो है is used everywhere. Adoption is the key. Hello and welcome everyone to the first ever episode of the Digital Pakistan Roundtable. Although we love our one-on-one podcast setup, but we realize that there are certain conversations just may be require more than one expert in the same room at the same time. So which is why the new year is going to be starting with the new format. The topic for today's conversation is something that is very, very popular आजकल, spectrum auction. And if you, like me, are not fully aware of the technical universe that exists and operates behind us using our mobile phones, then आज के experts हमें बैठ के समझाएंगे और सिखाएंगे कि what exactly is going to happen in the space and how are we going to benefit from it as normal consumers. So, welcome to all our guests, Aslam Hayat, Parvez Iftikhar and Mudassir Hussain. Thank you so much for taking out the time and joining me for this conversation. Before we start the conversation, I would like you guys to briefly introduce yourself, starting from Aslam. थैंक यू असमा. मेरा नाम असलम हयात है. आई एम IT and telecom lawyer, and I've been in this industry for past 25 years. I've worked within Pakistan in all government and private sector, and also outside Pakistan, based out of Fiji for World Bank, and spent about 5 years advising in Bangladesh also. So I have quite a lot of international and domestic experience on regulatory matters. Please. जी, मेरा नाम परवेज़ इफ्तिखार है and I have been in private sector and public sector. Private sector में मैं country head था एक multinational का, और public sector में I was the founding CEO of Universal Service Fund, नाम सुना होगा शायद आपने उसका, USF. और उसके बाद मैंने consulting शुरू की है. पिछले 10-12 साल मैं consulting कर रहा हूँ in telecommunications mainly, जो कि outside the country है, and I've touched so far about 17 countries in Asia and Africa. और पाकिस्तान में भी काम किया है. एंड माई बेसिकली वेल आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ एन ICT एक्सपर्ट. ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नॉट IT but communication as well as IT. Mudassir. Thank you, Asma. You know me well. I represent, basically in this discussion, I represent the industry and Jazz in particular. I head up public policy and regulatory affairs for Jazz, and I have experience working with the government, doing policy making work for the telecom sector since 2003, on and off, working inside, outside the industry, and you know, I've worked with the International Telecom Union and Asia Pacific Telecommunity and such organizations at international level as well. So currently with the industry to assess what's going on the spectrum front. Thank you so much. So we have established the fact that we have like great representation from every area. Starting off, I think सबसे पहला सवाल जो सबसे important भी है, even though I do understand the industry a little bit, but I would admit that when it comes to spectrum, I'm not very well versed in the technical terms, right? And our audience, most of our audience is very young. उनको भी इतना पता नहीं होगा. When they hear spectrum auction, maybe they won't really realize what I'm talking about. But when I say 4G and 5G auction, तब उनको एकदम समझ आएगी, oh 5G, our mobile speed is going to change, right? So if you can start off with, you know, if one of you can volunteer and explain to us spectrum basically होता क्या है, and why is it so important that its auction is being done right now? Okay, let me try. Spectrum आप ऐसे imagine करें जैसे कि it's a highway in the air. Okay. So it's available, it's there, highway बनी हुई है. We don't have to construct anything. And highway has got many lanes, maybe hundreds of lanes. So वो spectrum bands जिनको हम बोलते हैं. तो government allows the operators to use certain lanes and does not allow to use other lanes. So जितनी lanes government allow करती है, वो उसके लिए पहले auction होता है, और ऑक्शन से प्राइस मिलती है गवर्नमेंट को, और फिर वो लेन खोलती है. तो वो लेन्स अभी इस दफ़ा बहुत सी खुलने जा रही हैं. पहले हमारा प्रॉब्लम ये था कि बहुत थोड़ी सी लेन्स खुली हुई थी, जिसकी वजह से
हमारी सर्विस इतनी अच्छी नहीं थी, और अब इस दफ़ा गवर्नमेंट ने, विच इज़ अ गुड स्टेप, इतनी बहुत ज़्यादा लेन्स और खोल रहे हैं। मज़े की बात है, गवर्नमेंट को कॉस्ट कुछ नहीं करता ये, दिस इज़ ऑल फ्री ऑफ चार्ज फॉर, बिकॉज स्पेक्ट्रम एज आई सेड इज़ इन द एयर. तो दिस इज़ व्हाट इट्स ऑल अबाउट. Mudassir, then would it be safe to assume कि when we say कि हमारा नेटवर्क अच्छा नहीं चल रहा because you're representing Jazz here, तो it's also not just because कि एक ऑपरेटर का मसला है, but you know like he said कि जब लेन्स ही नहीं है या लेन्स पे गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, तो is it also because spectrum की availability was also a problem? No, no, surely it is one of the problems. How do you communicate on a mobile phone or access internet on a mobile? So you talk to a tower, a BTS, which you know, there are certain towers, and then your phone. So there's a certain amount of bandwidth exchange between the tower and your phone for you to be able to talk or access the internet. So if you have a bigger amount of spectrum programmed on that tower, you have a wider bandwidth from your phone to there. So you say, you know, I can, मेरी internet की speed ज़्यादा या कम है, या मेरी voice की. तो श्योरली ये जो मोबाइल कम्युनिकेशंस है उसके दो फैक्टर्स होते हैं कि आइदर यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेक्ट्रम टू प्रोग्राम ऑन अ फ्यू टावर्स इन एन एरिया, और you need to have a lot of towers in an area if the spectrum is less. So this tells you the importance that if you have more spectrum, you would be able to offer better services, more speeds. So this is how it correlates to your experience, why spectrum that Jazz has matters for you as a user. तो ये ऑब्वियस बात है कि स्पेक्ट्रम कम होगा तो मैं कंप्रेस करके, कंस्ट्रेन करके सर्विस दूंगा, अगर ज़्यादा होगा तो मैं ज़्यादा दूंगा. सो लेट मी हैव मोर स्पेक्ट्रम ईजिली सो दैट आई कैन सर्व माई कस्टमर्स बेटर, जो कि सिटीजन्स का एक पर्सपेक्टिव है इस चीज़ के ऊपर. And if my research is correct, Aslam Pakistan अभी right now has 270 megahertz of assigned mobile spectrum, जो कि Asia Pacific average से कम है, which is 700 megahertz, right? So do you think this is the reason right now the government is stepping up? Because although we are confusing spectrum auction with 5G auction for a lot of like regular people, but 3G and 4G bands भी available होंगे spectrum के अंदर. So is that the reason why the government is trying to do this, to make sure कि हमारी services बेहतर हो जाएं? एक्चुअली ये ऑपरेटर्स की डिमांड काफ़ी अरसे से है कि हमें ज़्यादा स्पेक्ट्रम चाहिए. जैसे अभी प्रवेश साहब और मुदस्सिर ने कहा है कि जब आप सेल साइट से सर्विस देते हैं तो अगर वहाँ पर यूज़र ज़्यादा हो जाएंगे तो कंजेशन होगी, लाइक मोटरवे, गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी तो कंजेशन शुरू हो जाएगी. उसके लिए जितनी लेन्स आप बढ़ाएंगे आपकी कंजेशन कम हो जाएगी. तो स्पेक्ट्रम जो है वो लास्ट माइल के लिए, टावर से लेकर फ़ोन तक, अगर यहाँ पर आपके पास यूज़र ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा स्पेक्ट्रम की ज़रूरत है. अगर आपके पास ज़्यादा स्पेक्ट्रम नहीं होगा तो अगेन वही कॉल ड्रॉप होगी, आपका डेटा की स्पीड कम हो जाएगी, आप 4G के बावजूद आपको बहुत कम स्पीड मिलेगी. तो उसका दो ही हल होते हैं, या तो ये है कि आप टावर एक और लगाएं उस एरिया में अंदर और उसी स्पेक्ट्रम को रीयूज़ करें. दूसरा ये है कि आप ज़्यादा स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट रिलीज़ करें और आप उस क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्रूव करें लोगों के लिए. तो यहाँ पर जो लिमिटेशन आ रही है वो सबसे ज़्यादा आ रही है स्पेक्ट्रम की अवेलेबिलिटी के ऊपर. और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो यूज़र्स है, कंज्यूमर्स है, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है. और जो प्रॉब्लम आ रही है वो इस वजह से आ रही है क्योंकि हमारे पास एनफ स्पेक्ट्रम नहीं है. अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो ऑक्शन जो है वो उस वक्त होती है जब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट शुरू हो जाती हैं ऑपरेटर्स की तरफ से. हालांकि होना ये चाहिए कि स्पेक्ट्रम जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेटर्स के पास जाएगा वो यूटिलाइज हो जाएगा. गवर्नमेंट के पास पड़े हुए स्पेक्ट्रम का कोई फ़ायदा नहीं, इट डज़ नॉट ऐड एनी वैल्यू. तो जितनी भी ऑक्शंस हुई हैं वो उसी वक्त हुई हैं जब ऑपरेटर्स जो थे दे वर डेस्परेट टू गेट मोर स्पेक्ट्रम. तो अभी भी सूरत हाल यही है कि कंजेशन है, क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत इफेक्ट होती है सारे ऑपरेटर्स की. और वी आर वेरी हैप्पी दैट गवर्नमेंट हैज़ फाइनली डिसाइडेड कि एक साइजेबल अमाउंट जो है स्पेक्ट्रम को रिलीज़ किया जाए डिफरेंट बैंड्स के अंदर. पहले तो बहुत ही थोड़ा होता था ना, अब 2014 की ऑक्शन है, उसके बाद 15 है, 16 है, वो बहुत कम थी. लेकिन इस दफ़ा अच्छी बात यह है कि साइजेबल स्पेक्ट्रम और डिफरेंट बैंड्स उन्होंने ऑफर किया है. अच्छा, सो वी टॉकिंग अबाउट 5G a lot, but 3G और 4G वाला भी वो कर ही रहे हैं. सो डू यू थिंक इज इट गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट इन एवरी एरिया 3G 4G वाला भी एज मच एज इट्स 5G? एक्चुअली वो जो स्पेक्ट्रम बैंड्स जो गवर्नमेंट रिलीज़ कर रही है, ऑक्शन कर रहे हैं जिनका, वो सब बैंड्स में यूज़ हो जाते हैं. तो 3G तो आप छोड़ दें, बिकॉज 3G इज़ कंसिडर्ड टू बी ए डेड टेक्नोलॉजी नाउ.
बट 4G के लिए भी वो बैंड्स इस्तेमाल हो सकते हैं और होंगे। इनफैक्ट जो इमीडिएट बेनिफिट होगा वो 4G को ही होगा। 5G तो आते आते आएगा, लेकिन इमीडिएट बेनिफिट 4G को होगा और 4G की सर्विस बेहतर हो जाएगी हमारी। जैसे मैंने कहा, लेन्स ज़्यादा खुल जाएंगी। Yes. ऑल्दो इसमें और कंस्ट्रेंट्स भी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो जैसे मुदस्सर ने एक्सप्लेन किया, स्पेक्ट्रम तो आपके हैंडसेट से टावर तक है। अब टावर के आगे का भी रास्ता है, तो टावर के आगे एक मोटरवे है, और वो मोटरवे जो है, वो जो फाइबर है वो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी का मोटरवे है, और अगर वो वायरलेस है तो उस कम कैपेसिटी का मोटरवे है। तो वो कम कैपेसिटी है जहाँ पे फाइबर और पीछे नेटवर्क के दरमियान वहाँ पे कुछ चोकिंग हो जाती है। चाहे आप जितना भी स्पेक्ट्रम दे दें, अगर वो पीछे बैक हॉल जिसको बोलते हैं उसको इंक्रीज़ नहीं किया जाएगा फाइबर ऑप्टिक लगा के, तो वो कंस्ट्रेंट भी एक रहेगा। बहरहाल definitely 4G will see a massive improvement after these spectrum bands become available. Actually, if I discuss the economic aspect of this whole thing, when I was researching, तो international evidence suggests कि delayed spectrum auction जो है can result in USD 1.8 to 4.3 billion in lost economic benefits, right? In a country like Pakistan, ये किन areas में show होता है और कहाँ पे आपको लगता है ये loss हो रहा है? देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी जो है, इंटरनेट फॉर एग्जांपल इज़ यूज्ड एवरीवेयर देयर इज़ नो एरिया वेयर वी डोंट यूज़। सो चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे वो डिजिटल इकोनॉमी हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, everywhere we need connectivity, and connectivity in Pakistan unfortunately is completely reliant on mobile or on wireless. तो इस वजह से जब नहीं होता तो हमारा हर शोबा जो है वो इफ़ेक्ट होता है, एंड देयरफॉर हमें दो चीज़ों पे काम करना है। एक तो स्पेक्ट्रम की इम्प्रूवमेंट पे काम करना है, विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस होपफुली, अभी हो जाएगा, और दूसरा हमें उसके बैक हॉल पे काम करना है, फाइबर ऑप्टिक्स पे, फाइबराइजेशन को इम्प्रूव करना है। सो it affects, I mean, I can't even list the areas or the segments or the sectors which it's going to affect. You talk of everything starting from entertainment to governance of the government. It is connectivity which drives the show. This is your company. Sorry, I would like to add to it. देखिए, जो numbers आपने बताए हैं वो that basically is in efficiency gain जो इसकी वजह से है। और ये हमने देखा है कोविड के ज़माने में कि जहाँ पे बिल्कुल बैन था, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, और बिजनेसेस जो थे उनको ज़ाहिर है कंटिन्यू भी करना था, और सारी जो फिज़िकल मीटिंग्स थी, जो ट्रैवलिंग थी, वो सारी की सारी जो थी वो हमने ऑनलाइन मीटिंग्स के ज़रिए शुरू कर दी, एंड दैट गेव यू द एफिशिएंसी गेन जो है। इसी तरह बाकी सारे सेक्टर्स के अंदर टेलीकम्युनिकेशन इज़ या इंटरनेट इज़ बेसिकली ग्रोथ इंजन फॉर ऑल अदर सेक्टर्स। आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लें, उसके अंदर जो आपकी ग्रोथ आती है वो सिंपली बिकॉज ऑफ द एफिशिएंसी विच दिस सेक्टर गिव्स टू द अदर सेक्टर्स। सो मेरे ख्याल में आई थिंक कोविड वाज द बेस्ट टाइम टू शो कि दिस इज समथिंग विच विल ड्राइव इन फ्यूचर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सो दैट विल गिव यू द फाइनेंशियल बेनिफिट, एंड दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट द पब्लिक ऑल्सो अंडरस्टैंड्स। अब देखिए, कोविड से पहले हम लोगों का इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत था, उसमें कार्बन के इश्यूज़ भी थे, आपकी हर तरह की प्रॉब्लम्स आती थी, कंजेशन थी ट्रैफिक की, लेकिन वो सब जो है वो इंटरनेट की वजह से ख़त्म हो गया, एंड वी गॉट अ लॉट ऑफ एफिशिएंसी गेन। सो आई थिंक उस हवाले से इट वुड एड मच मोर अमाउंट compared to what we are using physically. Yeah. एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, just to add to this, e-commerce है for example. Now the entire contribution of e-commerce to the economy, online shopping, which is now becoming a rage, is due to connectivity, and most of this connectivity is on wireless spectrum. So this figure that you've quoted, I think it can be even more than this. The efficiency gain, efficiency in every operation, plus the new business models that are being created because of connectivity. Do you have anything to add to this also? Because like Aslam said, right, telecommunications is the backbone of this whole industry.
So you guys serve 71 million customers. So do you have seen like any trends? Surely, I mean, in the telecom industry, we can even boil it down to bits and bytes and, you know, the whole figures. The figures you've quoted come from a GSMA study that we participated in. How much is Pakistan losing if you are not bringing more spectrum onto the market and letting people improve their efficiency due to that across every sector. So as you know, it's not just about telecoms, but telecom operators, they enter into digital world and they're doing a whole lot of other digital stuff, entertainment, health, education. So if you don't have this strong foundation, the efficiency gain in all of these other services and the people's experience on those will suffer. So for a company like Jazz, it is doubly important to be able to serve those customers all of their digital needs. Yeah. So all those digital needs represent value in some sector of the economy. So surely for the telecom industry itself, this is one of the lifelines. But surely, you do need spectrum. But surely you need to make economic sense to procure more and then deliver those services also. I can't stop myself from adding to this. Take mobile banking. I mean, in Pakistan, there were about, 24 million people who had bank accounts before the Jazz Cash and Easy Paisa and all that started. Now we have hundreds of millions of people, a couple of hundred, I don't know the exact figure, but who have bank accounts. Yeah. Now that is a huge contribution to the economy. That's true. अच्छा, for all of this to happen, spectrum होना ज़रूरी है और उसका एक process होता है. Government ने एक information memorandum release किया जिसमें ये सारी details है, right? So if somebody can help me break down the process जो उसमें बताया है, और I would like to understand कि government ने कोई incentivize किया है इस process को, because you can't ask a company or people to come and buy something at a very expensive price. So how are they facilitating the operators in the system to make sure that this whole auction is a success? जो अभी स्पेक्ट्रम उन्होंने किया है, आई थिंक उसमें एक तो अच्छी बात जो है वो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि वो बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रम जो है उन्होंने रिलीज़ किया है और किसी हद तक इंसेंटिवाइज करने की कोशिश ये की है कि जो पीछे पर मेगाहर्ट्ज़ प्राइस आ रही थी, जैसे $29 मिलियन पर मेगाहर्ट्ज़ था 2004 के अंदर, आखिरी ऑक्शन जो थी उसमें 850 की $39 मिलियन था और 1800 में अबाउट $29 मिलियन था. तो वो प्राइस जो थी वो बहुत ज़्यादा थी और इसी वजह से जो 2021 की ऑक्शन थी वो फेल हुई थी बिकॉज किसी ऑपरेटर ने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया था. तो अब इस दफ़ा उन्होंने दे रियलाइज्ड कि स्पेक्ट्रम जो है उसकी ज़रूरत है कंज्यूमर के हवाले से भी, ऑपरेटर्स के हवाले से भी, तो उन्होंने उस पर डिस्काउंट प्राइसेस दिए हैं. अब कुछ स्पेक्ट्रम है जो उसके अंदर उन्होंने $14 मिलियन पर मेगाहर्ट्ज़ रखा है और जो बाकी कुछ और स्पेक्ट्रम्स हैं उसमें इवन लेस देन $1 मिलियन रखा है. सो ये इस हद तक तो अगर आप डॉलर टर्म में देखें तो इस हद तक तो अच्छी बात ये है कि उन्होंने प्राइसेस को सिग्निफिकेंटली किया है रिड्यूस. लेकिन उसके साथ जो दूसरा इंसेंटिव होना चाहिए था वो होना ये चाहिए था कि आपको जो बाकी इश्यूज़ हैं इंडस्ट्री के, अगर वो आप सॉल्व करें, जैसे पावर का है, आपका फाइबर का है, क्योंकि टावर जो है उसकी अबाउट 17% के करीब पेनिट्रेशन है फाइबर की टावर तक, वो अभी होनी है. ROW के इश्यूज़ हैं, राइट ऑफ वे के इश्यूज़ हैं, टैक्सेस के इश्यूज़ हैं, तो वो सारे भी एड्रेस होने वाले हैं. तो गवर्नमेंट ने इस हद तक तो इंसेंटिवाइज कर दिया, स्पेक्ट्रम दे दिया, प्राइस कम कर दी और ऑपरेटर्स को है उन्होंने रोल आउट ऑब्लिगेशंस भी दी. उस पे आई थिंक थोड़ा सा शायद उस पर भी बात होगी. लेकिन जो बाकी इश्यूज़ हैं वो जब तक सॉल्व नहीं होंगे तब तक आप एक रोबस्ट किस्म का रोल आउट शायद ना देख सके. लेकिन अभी तक इट्स मच बेटर देन व्हाट इट वाज. If you look at it, what's different this time? सब लोग कहते हैं यार इतने क्वांटिटी आई स्पेक्ट्रम की और प्राइसिंग की भी बात. You see behind this, you can sense a shift in mindset. पहले ये होता था कि थोड़ा सा स्पेक्ट्रम लाएं, स्केर्सिटी क्रिएट की, मेक 3 or 4 5 पीपल्स फाइट
और उसको उसकी वैल्यू को बढ़ाएं, सो दैट इट वाज बेस्ड ऑन रेवेन्यू जनरेशन फॉर द गवर्नमेंट. फॉर फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री यू सेंस दैट दिस इज अबाउट taking service out to the people, helping the operators acquire more, do more, rebalance it, and take the service out to the people. So I've seen it from day one, all of these spectrum auctions, assignments, as a part of the government as well as the industry. So you do see a very a fresh change in mindset. But surely, like Aslam said, the loop has to be closed. There's some other things that need to be done to actually conclude this matter in a very good way. But surely a very good sign as we see this new policy and the IM that has come through. It is a good basis for futurization. आपका सवाल है कि इंसेंटिवाइज किया है कि नहीं किया. इंसेंटिवाइज किसी हद तक किया है बाय रिड्यूसिंग द प्राइसेस, लेकिन इंसेंटिव की ज़रूरत नहीं थी इसमें. रिडक्शन ऑफ द प्राइसेस ऑफ कोर्स इज एसेंशियल बिकॉज there is an affordability also of operators also, how much they can afford. But the thing is, everybody is so desperate because 4G was not working properly and service was bad and getting worse because of people are using more data, more people are coming on the net. So incentive na bhi dete to bahut incentive already tha. But what needed or what needs to be done in my opinion is to address the demand side also. कि अगर आप एक चीज़ अवेलेबल कर दें बहुत सारी और उसकी डिमांड ना क्रिएट करें तो वो इतनी ग्रो नहीं करेगी, इकोनॉमी को इतना फ़ायदा नहीं होगा, मुल्क को इतना फ़ायदा नहीं होगा जो कि हो सकता है जब तक कि आप डिमांड क्रिएट ना करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्कूल्स को इंटरनेट कनेक्टिविटी दें विद ऑप्टिक फाइबर केबल्स, तो ऑप्टिक फाइबर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भागे भागे आएंगे और दे विल इन्वेस्ट इन दैट बिकॉज दे विल सी अ मार्केट. अभी छोटे छोटे शहर जो हैं पाकिस्तान के, लीव अलोन द फर्स्ट मे बी 8 or 10 cities, people are not, I mean the investors are not interested to lay any fiber. That is why हमारी फाइबर जो है वो इतनी कम है और ओनली 15%, आपने 17 कहा, एक्चुअली 15% मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमारे टावर्स जो हैं वो फाइबर से कनेक्टेड हैं, जबकि again according to my information India is 30%, even Bangladesh is about 27%. So we have to address the demand side also to incentivize. हमने कॉस्ट की बात की. सो द थिंग इज के एज अ कंपनी व्हेन यू आर ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, आप लोग जितना भी रेवेन्यू कमाते हैं दैट्स इन PKR, बट द स्पेक्ट्रम दैट इज बीइंग सोल्ड, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट $1 million, राइट? जितने भी हैं लेकिन वो $1 million ही हैं. तो व्हाई इज दैट डिफरेंस देयर? हम लोग डॉलर्स में ख़रीद के फिर उसको हम लोग कॉस्ट पूरी करेंगे एज अ कंपनी फ्रॉम रुपीज़. हाँ, ये एक बड़ी अजीब सी बात है. बाय द वे, आपने कहा आप लोग कमाते हैं, हमने मैं तो अपने आप को उसमें नहीं काउंट करता. आई एम ए प्राइवेट सिटीजन. लेकिन हम ये बात सी कि ऑपरेटर्स जो हैं बेचारे दे अर्न इन रुपीज़ एंड what the government is selling, the spectrum is free of charge. So they don't have to import spectrum outside के डॉलर में. तो ये समझ नहीं आती बात, ये डॉलर्स से इतनी ऑब्सेशन क्यों है? इसकी मेरा ख्याल है उसकी रीज़न ये है कि उनको खुद अपनी करेंसी पे एतबार नहीं है, क्योंकि डिवैल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है. अगर आप 2004 से लें, जब टेलीनॉर और वारिद के आए थे तो वो 60 रुपये का डॉलर था, आज 280 रुपये का है. तो चूँकि उनको खुद शायद कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी करेंसी पे, तो दे वांट अ स्टेबल करेंसी, तो उसमें डॉलर्स के ऊपर वो ज़्यादा करते हैं. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि स्पेक्ट्रम ऑपरेटर को डॉलर में ख़रीदना पड़ता है और उसके बाद सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इक्विपमेंट है, वो सारे का सारा डॉलर में होता है. हैंडसेट जो इंपोर्ट होंगे 4G 5G के, वो सारे डॉलर्स के अंदर होंगे, लेकिन जो उसकी इनकम है वो रुपये में आएगी. सो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपकी सर्विस अफोर्डेबल बनाने के लिए क्वालिटी ऑफ सर्विस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ऑपरेटर्स को. और जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी कि आप अपना स्पेक्ट्रम जो है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है आपके सॉवरेनिटी की वजह से, उसको अगर आप आर्टिफिशियल सिक्योरिटी क्रिएट करके और उसको महंगा बेचने की कोशिश करेंगे, हायर बेस प्राइस रख के, तो इवेंचुअली जो है वो कंज्यूमर को, मुझे और आपको ही देना पड़ेगा. वेदर वी से कि जी ऑपरेटर ने पे करना है, गवर्नमेंट ने करना है, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे एज ए कंज्यूमर पे करना पड़ेगा अपने बिल्स की शक्ल में,
या क्वालिटी ऑफ सर्विस पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की शक्ल में। तो गवर्नमेंट और ऑपरेटर सबको ये समझना चाहिए कि इवेंचुअली इट इज़ द कंज्यूमर हु विल हैव टू पे द प्राइस। इसमें I think this is one of the oldest structural matters that the industry has always said with it. But one good thing that has happened this time, although they have not removed the dollar denomination, what hurted the operators more because they need to roll out networks and put investment into the network. They need to be sure how much their cost will be because there's an annual cost that you pay in terms of installments, etc. And you need to know how much will that be. But if you pay that in dollars, you'll have a varying cost every year because of the devaluation. So this was the major issue that we had, that there's no certainty on how much investment would be required. What they've done is now they've proposed in the IEM, in the policy, that the dollar rate will be locked on the day of the auction. So it will not change. So you sort of, first time they've provided a hedge for the devaluation, that you will have certainty that you're locked. So essentially it's in rupees, because if you look at these other interest rate applied on installment, it's now in KIBOR and not in LIBOR. That's in case of the floating dollar. So a big improvement, a big win this time is that this realization that the dollar devaluation risk for the operators need to be hedged, and they've fixed it. So this is a part of the major improvement we see in this. And the reason I feel like the price thing is so important also, because if खरीदना तो नहीं ना spectrum, I am sure then the operators have to deploy it for a person like me, a common person, to use it. तो उसकी भी तो कोई cost होती होगी. Huge cost, huge cost. I mean, that the infrastructure is not cheap. And infrastructure has to be imported. You have to pay dollars for that also. Then you have to pay customs duties. Then you sometimes have to pay regulatory duties. Then sometimes you have to pay additional customs duties. And then you have to pay the sales tax. So it's a lot of that part also goes to the government. So yes, it's not enough to buy spectrum. You have to deploy you have to use the spectrum. In order to use the spectrum, you need to deploy and invest in the infrastructure. So just to give you a slight, very quick data point on this. You say, what do? You buy a spectrum, what do you do with the infrastructure? So just to give an idea, in a normal area, not a very unusual terrain, in Islamabad, deploying one cell site would cost between $100,000, again in dollars, to $130,000-$40,000. So it's a very easy math. You can multiply that if you need thousands of sites, so how this cost escalates. So spectrum price plus infrastructure price plus marketing price, cost, operational expenses. So this is what makes this telecom business, connectivity business, a very capital intensive business. और ये सब कुछ करने के बाद, if there is no user or users are too few, 5G handsets की बात होती है, तो how will the operators, how will it make business sense? For the private sector operators, it has to make business sense. So I come back to my earlier argument that we have to address the demand side. So in this case, the demand is demand side is the handset. So right now, even the cheapest locally produced smartphone is taxed at a rate of 18%. So that's an entry barrier for many. I mean, there are many people, maybe 30% of our population or even more, who cannot even think of crossing that barrier and becoming a user of internet. But it's not because people are not interested, right? आजकल, for example, Food Panda, in Rive, I feel like बहुत एक major population का हिस्सा है that has come on the internet and they earn their money because of it. अगर उनको पता चलता है कि getting a new handset or getting a new SIM or a new service going to improve my efficiency in that sense, वो शायद invest करने को तैयार होंगे. Absolutely. But do you think it's because the cost is such a huge thing, which is why they might find it hard, or they might think about it more than they should to convert from a 3G, 4G user to a 5G user? I don't think so. देखिए, अभी जो यूज़ केसेस हैं उसमें ज़्यादातर जो है वो आपका या तो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, व्हाट्सएप कॉल है या आपका रेगुलर फ़ोन कॉल है या
दूसरा होता है एंटरटेनमेंट के लिए, आप यूट्यूब देख रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरेक्शन के लिए, इसके लिए आपको 5G नहीं चाहिए। Okay. सो लेट्स बी वेरी क्लियर, ये सारी सर्विसेज जो हैं वो आपको 4G पे बड़ी आसानी से मिल जाती है, और 4G का हैंडसेट जो है वो किसी हद तक अफोर्डेबल है। जब आप 5G की बात करते हैं तो 5G का हैंडसेट आज भी पाकिस्तान में नॉट लेस दैन 80,000 रुपीज़, जो बहुत कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अब 5G जो सर्विसेज हैं वो बेसिकली रियल टाइम है, उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। जैसे परवेज़ साहब ने कहा कि आपको डिमांड साइड को एड्रेस करना है, हमारे पास 5G के यूज़ केसेस नहीं है। एक आम आदमी के लिए जो आज उसकी ज़रूरत है या कुछ अरसे बाद की भी उसकी ज़रूरत है, वो 4G के साथ पूरी हो सकती है। 5G के यूज़ केसेस जब तक नहीं होंगे तब तक ऑपरेटर के लिए भी इंसेंटिव नहीं होगा कि वो एक मैसिव रोल आउट करें। वो शायद गवर्नमेंट ऑब्लिगेशंस की वजह से, क्योंकि स्पेक्ट्रम 5G का आ रहा है तो शोकेस होगा, कुछ साइट्स जो हैं सिटी के अंदर, बड़ी सिटी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अंदर वो एज अ शो रख दें कि ये हमने 5G इनेबल कर दिया है। लेकिन उसका मैसिव रोल आउट तब होगा जब आपके पास 5G हैंडसेट होगा। आज मेरे ख्याल में लेस देन 2% है नेटवर्क्स के ऊपर, और उसके बाद उसके यूज़ केसेस होंगे, लोग इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। जब तक वो नहीं होगा, और उसमें भी ख़ुद से शायद इसमें बहुत देर लगे 5G को आम यूज़र तक पहुंचने में, उसके बेनिफिट्स को। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है जिस तरह ये रोल आउट कर रही है स्पेक्ट्रम को, राइट ऑफ वे के इशूज़ के ऊपर बात कर रही है, तो इन सब के साथ साथ उनको डिमांड साइड की पॉलिसी भी देनी चाहिए, ताकि डिमांड क्रिएशन जो है जिसमें आपको, और 5G के यूज़ केसेस के लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट चाहिए, बेशक वो एग्रीकल्चर हो, हेल्थ हो, वो आपका एजुकेशन हो, वो डिमांड साइड पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से आए ताकि वो इस रोल आउट को सपोर्ट कर सके। वरना इस 2% हैंडसेट के साथ देयर इज एब्सोल्युटली नो सेंस फॉर एनी ऑपरेटर टू हैवीली इन्वेस्ट ऑन 5G। Can we like discuss use cases a bit more in detail? क्योंकि मेरे इर्द-गिर्द when I talk to people, for them, you know, गेमिंग के लिए, मूवी डाउनलोड करने के लिए, गेम डाउनलोड, that is what they need 5G for, right? वो इसके बियॉन्ड तो सोचते नहीं है। तो असल में जो यूज़ केसेस है, समथिंग दैट वुड मेक फाइनेंशियल सेंस, वो कौन से यूज़ केसेस हैं? इसमें देयर इज अ बेसिक डिफरेंस in this generation 5G versus 4G, and that difference is not about what we call retail broadband. Retail broadband is what you and I and him use for our social media and our regular. So 5G का जो असल sense है, it is about big value add to the economy in terms of enterprise. आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको पूरे का पूरा ऑटोमेट करना, हेल्थ केयर है, आपकी लॉजिस्टिक्स है, आपकी माइनिंग है, दोज इंडस्ट्रीज़ दैट, और ऐसी चीज़ें जो मिशन क्रिटिकल हैं जिसमें लेटेंसी और ये नेटवर्क ऐसा क्विक रिस्पांस वाला नियर रियल टाइम चाहिए। तो वो यूज़ केसेस जो असलम साहब कह रहे हैं कि हमारी इकॉनमी में के बाकी सेक्टर्स में वो यूज़ केसेस एंटरप्राइज स्केल के जो कि हाई वैल्यू यूज़ केसेस हैं, अट्रैक्टिव फॉर ऑपरेटर्स टू डिप्लॉय 5G, वो अभी नहीं है। अगर आप लोअर लेवल पे, रिटेल लेवल पे यूज़ केस देखें तो आप देखें कि हमारे यहाँ फाइबर टू द होम नहीं है ज़्यादा, तो होम ब्रॉडबैंड फाइबर पे ज़्यादा नहीं है। व्हाट 5G immediately can serve as, they can serve as a replacement of fiber to the home, जिसको हम फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस कहते हैं। दुनिया भर में 5G का एक बहुत बड़ा यूज़ केस है कि जहाँ पे आप घरों को फाइबराइज नहीं कर सकते तो आप उसमें 5G सर्विस दें और द होम ब्रॉडबैंड कैन बी सर्व थ्रू दैट। तो वो चीज़ है। और दूसरी हमारे उसमें ना जो अभी जिक्र हुआ कि गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करे डिमांड साइड को, यहाँ पे जो प्रोवाइडर्स हैं उन्हें खुद सीड करना पड़ेगा, खुद डिमांड को एंटरप्राइज पार्टनर के साथ मिल के उनके साथ को इन्वेस्ट करके उस डिमांड को भी क्रिएट करना पड़ेगा। सो दैट इज़ डबली इम्पॉर्टेंट कि जी अगर मैं अब हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ कोई ऐसी कोलैबोरेशन करके बनाना चाहता हूँ तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो अपने बिजनेस एज यूजुअल पे खुश है। टू क्रिएट वैल्यू फॉर देम आई नीड टू टेल दैट हियर इज़ व्हाट दिस टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट वैल्यू फॉर देम। If they're convinced, then I can work with them. We can work together to provide you the technology as well as to create this together. तो फिर अगर वो चीज़ आ जाती है तो that's a large sector of economy that can benefit from 5G. जो players हैं वो इस डिमांड क्रिएशन को करने में
ख़ुद वो शामिल होना पड़ेगा, प्रोवाइडेड। अब इसका क्या है कि जी अगर गवर्नमेंट फॉर इंस्टेंस डिमांड की पॉलिसी ये भी हो सकती है कि आप टेक्सटाइल सेक्टर को कोई ब्रेक दे दें टू ऑटोमेट एंड डिजिटाइज एंड मूव टू 5G, ताकि उनको उधर से जो बचत हो तो वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर दें। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स कि जी आप ख़ुद से मूव करें अपने सेक्टर्स को ऑटोमेटेड वर्किंग और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। तो आई कैन गिव यू एग्जांपल। 5G जो है उसमें बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट तब है जब आपने कोई भी ऑपरेशन जो है या कोई भी एक्टिविटी जो है वो रियल टाइम में करनी है, उसमें से ज़रा से भी लैग या डिले नहीं आए। फॉर एग्जांपल आपने रिमोट ऑपरेशन करना है किसी पेशेंट के ऊपर, ऑटोनमस कार्स को चलाना है जहाँ बिल्कुल वो सड़क पे ऊपर 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रही हैं और दे नीड टू टॉक टू ईच अदर वरना एक्सीडेंट्स होंगे। तो इस किस्म की इन्वायरमेंट के लिए आपको 5G चाहिए। तो ये एक्सपेक्ट करना एक ऑपरेटर के साथ कि वो डॉलर में पे करके स्पेक्ट्रम ख़रीदे, डॉलर में इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करे, उसके बाद 300 रुपये के अंदर वो हैंडसेट भी सब्सिडाइज़ करे या उसको उस पर दे किस्तों पे, और उसके बाद वो 5G के लिए यूज़ केसेस भी डेवलप करे। आई थिंक दिस इज़ आस्किंग टू मच फ्रॉम द ऑपरेटर्स। सो दैट्स वाई आई एडवोकेट कि गवर्नमेंट जो है उनको जो डिमांड साइड पॉलिसी है वो लेके आनी चाहिए। ये जो रियल टाइम वाले जो आपके यूज़ केसेस हैं उसके ऊपर काम करना चाहिए। और आई एग्री कि शुरू में शायद एंटरप्राइज लेवल पे तो ज़रूरत होगी, लेकिन हमने अगर इसको मैसिव रोल आउट करना है, हर यूज़र तक पहुंचाना है, तो हमें जो रियल टाइम यूज़ केसेस हैं वो आम आदमी तक भी पहुंचाने चाहिए। हम डिप्लॉयमेंट की बात करें बार बार, एक रेगुलर पर्सन पर्सपेक्टिव ये होगा कि टावर्स तो लगे हुए हैं, मेरे घर के पास टावर है, मेरा 4G भी उसी पे चलता है, तो उस पर 5G क्यों नहीं आ सकता? वाई आर यू गाइज टॉकिंग एज इफ इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू मोर मनी फॉर इट? And what is the difference between that tower being used for 4G and then not being able to use for 5G? No, that tower will also be used for 4G, 5G. The thing is, we need more. They are not enough because when we go in higher frequencies, then the range decreases, the capacity increases, but the reach decreases. So of a tower. So what we'll have to do is we'll have to improve or increase the number of, not necessarily towers in this case, but this can be deployed, for example, on street poles or inside the big buildings and all that. So we'll need to increase the number of sites or number of base stations, call them, which are able to deliver 5G. So 5G needs more dense infrastructure, and on top of that, that infrastructure has to be connected again. I keep coming back to fiber. Yeah. Because if there's no fiber, then there's no 5G. So that we need to invest a lot more in fiber also. अच्छा, with 5G I've also heard कि they do single locations as well, कि आप सिर्फ एक certain area identify कर लेते हैं कि यहाँ पे 5G की ज़रूरत ज़्यादा है, so maybe I'll just deploy there. Is that something in your plans, मुद्दसर, जब आप लोग as a company लेते हैं तो फिर उस तरह से identify करेंगे deployment? ये तो obviously इस चीज़ को कहते हैं कि जी existing एक नेटवर्क है, पहले 2G होता था, उसके ऊपर 3G आई, laid on top of 2G नहीं डिसअपीयर हुआ, फिर 3G के ऊपर 4G। इसको कहते हैं कि यू डिप्लॉय इन हॉट स्पॉट्स। इनिशियली आप करते हैं कि 4G का नेटवर्क होगा, इस्लामाबाद सारा 4G है, तो लेट्स से कि ब्लू एरिया, F10 मर्कज़, ये कुछ इसमें हॉट स्पॉट्स पहले इनेबल होंगे जहाँ पे ट्रैफिक है, डिमांड है। तो इन द फर्स्ट फेज़ यू कुड एक्सपेक्ट दीज, एंड दैट्स हाउ यू ग्रो द नेटवर्क। आप फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी उसको भी फिल करते हैं, अनलेस द बॉटम लेयर इज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। जैसे आपने देखा होगा, हमने 3G सनसेट कर दिया, Jazz entirely sunset its 3G because the 4G layer that came on top of it became complete. इसी तरह you expect this 5G to cover up 4G until the other ones are no more required. तो जो हम बात करते हैं उसमें कहने का ये है कि अगर आपने फ्यूचर में 5G देखा है तो इस 5G को क्विकली उसका सप्लाई और डिमांड दोनों साइडें पूरी करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, rather than making operators focus on legacy 4G कि जी 4G ultimately हो जाए। तो work towards the future more rather than try to plug gaps in the legacy। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट है जो लेना है कि जी अगर आप ला ही रहे हैं 5G तो उस पर एक फुल थ्रॉटल फोकस रखें, उसकी सारी की सारी इकोसिस्टम को करें, और दैट्स वेयर यू वांट योर कंट्री टू मूव।
both on retail broadband as well as on enterprise and other use cases. तो 5G को इंसेंटिवाइज करें। 5G को incentivize. 4G तो खैर जैसे मैंने कहा बेहतर हो ही जाएगा विद मोर स्पेक्ट्रम, उसमें कुछ काम इस वक्त करने की शायद ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो उसमें भी ज़रूरत तो है। इवन 4G के हैंडसेट्स आपने कहा बहुत से लोगों के पास हैं, फूड पैंडा, InDrive की एग्जांपल्स दी आपने, लेकिन उधर भी बहुत से लोग हैं जो 4G हैंडसेट भी अफोर्ड नहीं कर सकते, और उस ऑन टॉप ऑफ दैट हमने 18% टैक्स भी कलेक्ट करना होता है उस पर। तो वो इसलिए देयर इज़ ए रिक्वायरमेंट ऑफ 4G को तो चलो ठीक है इंसेंटिवाइज करने ही करें, लेकिन 5G नीड्स मैसिव काइंड ऑफ इंसेंटिवाइजेशन। yes. तो अगर मैं ऑपरेटर की तरह सोच रहा हूँ तो मैं ये देखूँगा कि 5G लगाने के लिए कौन से एरिया है जिसमें 5G हैंडसेट की अवेलेबिलिटी है, मैं पहले उसको फोकस करूँगा। और दूसरा ये है कि चूँकि यूज़ केसेस नहीं है तो मैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की तरफ जाऊँगा कि IoTs जो हैं मैं इंडस्ट्रियल एरियाज़ की तरफ जाऊँगा, या जहाँ माइनिंग हो रही है वहाँ जाऊँगा और वहाँ पर उसको इनेबल करूँगा 5G को, ताकि IoT सर्विसेज उनकी जो रियल टाइम में उनको चाहिए अपनी ऑटोमेशन के लिए, अपनी जो वैल्यू चेन है वहाँ पर मैं करूँगा। और उसके बाद फिर जैसे जैसे ग्रेजुअली उसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी बाकी जगह होगा। सो मैसिव रोल आउट शुरू से नहीं होगा, दिस इज़ व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज़। तो पब्लिक नीड टू अंडरस्टैंड कि 5G की स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी आ जाएगी, चूँकि पूरा इकोसिस्टम नहीं होगा तो इसका रोल आउट बहुत आराम से होगा। बट डेफिनेटली जो इमीडिएट इम्पैक्ट उनको नज़र आएगा अगर ये ऑक्शन सक्सेसफुल होती है तो 4G की क्वालिटी उनकी इंप्रूव हो जाएगी। जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है? फॉर एग्जांपल एक लार्ज इंडस्ट्री है जहाँ पेपर बनता है फॉर एग्जांपल, या कपड़ा बनता है। सो व्हाट दे हैव इज़ दे हैव ए लॉन्ग रो ऑफ मशीन्स जो कि हर स्टेज को प्रोसेस कर रहे होते हैं। नाउ व्हाट नॉर्मली जो ऑटोमेटेड मशीन जब इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें क्या होता है कि हर स्टेज पे सेंसर्स लगे होते हैं। तो सेंसर्स आर मेजरिंग दैट टेम्परेचर, the strength which it is being pulled. Paper for example is very sensitive, वो कहीं फट जाता है वो अगर उसकी सही स्ट्रेंथ से उसकी फोर्स उसकी पुल ना हो रही हो। टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, there are a lot of things which are right now what is happening is कि each of these sensors is connected with a wire to a central computer. So imagine there are thousands of wires going to a central computer and where you have the display, or central नहीं तो peripheral जो जगह जगह पे लगे होंगे. So all that can disappear if that is put on 5G. So there can be a massive improvement and less trouble, less fault points, and of course जो futuristic industries लगेंगी. आज अगर कोई textile mill लगा रहा है तो I think the best bet for him is to go for 5G rather than laying optic fibers or copper cables. Very interesting. अच्छा, if to conclude, अब ऑक्शन तो होना है, that is something that is going to happen, right? And आप लोग participate भी करेंगे, सब कुछ होगा. But what are the ways we'll measure the success, not of just the auction, but then the deployment also in the next 4-5 years? ऐसे कौन सी चीज़ें होंगी जिस पे हम नज़र रखें as a user or as an industry person? क्योंकि fine, now we can say कि whatever happened a few years later, that was a great decision and it was successful. I think one measure could be that we compare ourselves with our neighbors and see where we are after 4 years. Have we, because we need to do some catching up, let's be honest. So have we caught up to some, and to what extent? I think that will tell us how successful we are. Or But in what areas आप catching up की बात करते हैं? एक इसमें जो important चीज़ है ना, if you look at 3 years down the road, you say we're going to deploy 5G and improve 4G. Improve 4G is ये आसान है कि download speed, average, national, and that's also a part of the IEM. That if your global standing on download speeds and network availability that goes up, that's fine. If you talk about the future, what would 5G be? If you say there's a serious enough focus on 5G rollout, what we believe would be a success is that if within 3 years, if you have around 30 million users and 30 million handsets actually using 5G, deploy 5G, 30 million, और उसके साथ फिर on the side ये, if there are enterprise use cases that develop in the industry, that's a value add on top of that. लेकिन
30 मिलियन आ जाना उस वक्त तक, दैट्स व्हाट वी बिलीव इन आवर थिंकिंग इट विल बी called a success. Catching up, आपने कहा we are 5 years behind. So one criteria is that 5G coverage as a percentage of total population या उसका जो infrastructure है उसकी depth. So these are the things that can be measured. तो अगर इस इंसेंटिव की वजह से ऑर्गेनिक जिस स्पीड पे उसने नॉर्मल ऑपरेटर्स की डिप्लॉयमेंट से जाना है या एक स्पेशलाइज्ड इंसेंटिवाइज्ड मूव टुवर्ड्स फ्यूचर है, तो यू कैन से कि जी मैं इफ़ आई वांट टू लीप फ्रॉग, सो यू विल हैव टू प्रोवाइड दिस इंसेंटिव फॉर द फ्यूचर सर्विस 5G एट्सेट्रा टू बी रोल्ड आउट क्विकर देन करंट. अभी 1000 साइट्स पर ऑपरेटर का IM में है कि जी आप साल में 1000 साइट लगाएंगे, उसमें 800 अपग्रेड होंगे और 200 नहीं. तो इफ़ यू कैन फाइंड अ वे टू इंसेंटिवाइज द ऑपरेटर टू डू 2000 or 3,000 a year, so that means you're trying to accelerate under an incentive plan. So these are the things that can help you arrive and plug this gap quicker. And regional parity क्या ऊपर आप पहुंच जाएंगे. देखिए मेरे लिए सक्सेस फैक्टर जो है वो कंज्यूमर साइड है. मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 1000 साइट्स लगी हैं या 2000 साइट्स लगी हैं. मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 700 मेगा स्पेक्ट्रम बिका है या 3500 या वटेवर. मैं एज अ कंज्यूमर आई वांट अ बेटर क्वालिटी. मेरे नज़दीक सक्सेस फैक्टर ये होगा कि जब मुझे आज 4 Mbps मिल रहा है, उसके बजाय मुझे 50 Mbps मिलना शुरू हो जाए. मेरी बफरिंग की रिक्वायर जो उसमें आती है वो ख़त्म हो जाए. अब जैसे आज बेस्ट यूज़ केस आपका ऑनलाइन गेमिंग का है, तो मैं जब पूरी दुनिया में दूसरे बैटल रॉयल है या कोई और मल्टीप्लेयर है दूसरे मुल्कों से खेल रहे हैं, तो इससे पहले कि वो मुझे गोली मारे मैं उनको गोली मार सकूं. सो दिस इज़ फॉर मी द सक्सेस फैक्टर इज़. मेरे ख्याल में एक और चीज़ शायद उस पर हमने बात नहीं की, वो PIA की ऑक्शन है. अगर गवर्नमेंट जो है इसको भी उसी तरह ले, तो बजाय इसके कि पैसे जितने स्पेक्ट्रम से आते हैं सेल से वो हमारे किसी और स्टेट ओन एंटरप्राइज की फंडिंग में चले जाएं या सर्कुलर डेट में चले जाएं, वही अगर कमिटमेंट ऑपरेटर्स की तरफ से वो दी जाती कि जी जो आप बिड करेंगे एक रोल आउट पे करें, दूसरा आप जितनी भी आपकी जो प्राइस होगी जिस पे आप बिड करेंगे वो सारे का सारा आपने रोल आउट के ऊपर लगाना है, जैसे PIA के अंदर किया गया है. तो वो ज़्यादा बेहतर होता बजाय इसके कि सारा पैसा जो है ये निकाल के सेक्टर से बाहर चला जाए. सो दैट मनी वुड हैव बीन इन द सेक्टर. सो मेरे लिए वो शायद ज़्यादा बेहतर होता. तो आई थिंक PIA इज़ अ गुड एग्जाम्पल. द गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू थिंक दैट शायद आज नहीं तो कल किसी वक्त कि जो इस स्पेक्ट्रम की इनकम हो उसको सेक्टर में वापस आना चाहिए बजाय इसको कि इसको निकाल दें, क्योंकि एनी मनी गोइंग आउट ऑफ द सेक्टर इज़ बेसिकली अ लॉस फॉर एवरीवन. इंडस्ट्री के लिए भी है, ऑपरेटर्स के लिए भी है और कंज्यूमर के लिए भी है. Yes. एक और सक्सेस फैक्टर जो वो ये है कि नंबर ऑफ प्रेमिसेस कनेक्टेड विद फाइबर जो है हमारे बहुत कम है. वी आर लेस देन हाफ द एवरेज ऑफ साउथ एशिया. सो फिक्स वायरलेस एक्सेस जो 5G का एक पार्ट है, उससे हम इसको कवर कर सकते हैं. सो इट इज़ there we don't have to deploy fiber to each and every house, but we can deploy one fiber pole, let's say, or in the middle of a street, and it can go serve the people with fiber-like experience with 5G fixed wireless access. So that is another area where we can improve the fiber to the premises का हमारा जो figure है, which is dismally low. Just for conclusion, do you guys have any wishes for the auction itself? Okay, one special wish that अगर government सुन रही है, if anybody else is listening, तो फिर that can be implemented, and you hope to see that happen on the auction day. आई थिंक मेरी विश तो ये होगी कि सारा स्पेक्ट्रम सेल हो जाए और उसमें जो रोल आउट ऑब्लिगेशंस हैं वो प्रैक्टिकल हों, नॉट जस्ट कि फॉर द सेक ऑफ हैविंग 5G. और तीसरा ये है कि गवर्नमेंट को कुछ जो बाकी स्टेप्स लेने हैं हैंडसेट की अवेलेबिलिटी के ऊपर, रिडक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन द हैंडसेट, ताकि आपका एक एंट्री बैरियर ख़त्म हो
वो अगर हो जाए तो आई थिंक दैट वुड बी वेरी वंडरफुल. Many wishes he has. नहीं, बेसिकली विश तो ये है कि स्पेक्ट्रम सेल हो जाए और सब्सिक्वेंट टू दैट ऑपरेटर्स आर एबल टू डिप्लॉय दैट इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम एंड द पीपल एंड द गवर्नमेंट पीपल एंड द कंट्री द इकोनॉमी starts benefiting from that as soon as possible. Mudassir, do you Sooner think the better. ये इस तरह की इनकी विशेष ज्यादा आसान है because they are not the ones spending the money, right? From your perspective, आपकी तो जेब से पैसा जाएगा, so नहीं, surely, I mean, if I spend money from the pocket, कुछ price points अच्छे हैं, कुछ still need to be improved. If we want to say, हम जैसे हम एक चीज़ कह रहे हैं ना कि वो आ जाएगा तो 4G खुद ब खुद से इम्प्रूव हो जाएगा, वो उस तरह से नहीं होगा अनलेस के जी जो उससे रेलेवेंट पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम है उसको थोड़ा मज़ीद इंसेंटिवाइज किया जाए ताकि रूरल हाईवेज पेरी अर्बन सब अर्बन की तरफ जल्दी ट्रांजिशन हो 5G की. बट इफ़ आई स्पेंड मनी आई वुड वांट टू डिप्लॉय इट एंड make people use it. So if I light up Islamabad today and not a whole bunch of people can use 5G, so चीज़ ये है कि adoption is the key. It's not that you create a supply, लेकिन वो adopt भी हो नीचे. So as a telecom operator, you wish के जी I get users, I contribute to their experience, and in particular in case of Jazz, I want to do more digital stuff on top of this thing. So I want this thing to go. और auction के हिसाब में if in terms of scale आप कहें कि 80% अच्छा काम गवर्नमेंट ने कर दिया and these supporting policies demand side वाली ये concurrently भी चाहिए. बाद दफ़ा हम कहते हैं कि यार let it come, वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन एक अच्छा वाटरशेड मूवमेंट है उसके ऊपर ही काम अगर होता है, हमारी कौम ये करती है कि उसके साथ जो चीज़ हो जाती है बाकी फिर लटक जाता है काम. तो ये चीज़ें अगर साथ हो जाएं और यू टेक अ फ्रेश स्टार्ट टूवर्ड्स द फ्यूचर, तो ऑपरेटर्स इसी वजह से इस पे एक्साइटेड हैं कि एक पॉसिबिलिटी खुली है एंड यू मूव इनटू द फ्यूचर. और थोड़ी बहुत जो इसमें कसर है, there are requests and demands that we have made to the regulator, to the ministry, to the larger government. यार कर लिया है तो ये बाकी 20% कसर भी पूरी कर लो ताकि it can be truly a remarkable new start, a reset for the connectivity market in Pakistan. I hope हम they भी listen to एक्साइटेड you. हैं कि ये हमारे ये 4G एटलीस्ट फौरी तौर पे तो जैसे मुदस्सिर ने कहा नहीं होगा, लेकिन जल्दी से जल्दी इंप्रूव हो ताकि इस्लामाबाद से निकलें तो पीस सिग्नल मिले. नहीं सर, आप F10 में इम्प्रूव हो जाएगा आपका. लेकिन F10 में तो ठीक है, लेकिन बाहर जाते हैं तो नहीं मिलता. ब्लू एरिया में बड़े शहरों को छोड़ के बाकी जगह पे सर्विस जो है सर, इसीलिए वन रीज़न वो हम कहते हैं ना कि 700, आज भी हमने बांग्लादेश की खबर सुनी यार, ये वो 700 की प्राइस इन्होंने बड़ी रीजनेबल की, 6.5 मिलियन, लेकिन थोड़ा व्हाई डू यू नीड, बिकॉज साथ में आप बड़े शहरों के तो इन्होंने खुद कहा है कि जी 5-6 शहर कर लेना और फिर देन इट रैम्प्स अप. व्हाट इफ़ यू वांट टू डू, इफ़ आई वांट टू डू मोर रूरल हाईवे कवरेज ये वो, तो 700 दैट्स वेयर इट कम्स के जी आप जो मेरे जो थोड़े दूर दराज के लोग हैं उनका भी हक है. इफ़ दे वांट टू एक्सपीरियंस दिस, तो if I can buy 700 for cheap and add it on top of my rural connectivity map, तो वो भी जल्दी अराइव हो जाएगा. ये तो सिटीज़ फर्स्ट टीयर सिटी, सेकंड टीयर, लेकिन यू नो थर्ड फोर्थ टीयर और हाईवेज विल्डरनेस वो भी बेनिफिट कर सकती हैं अगर इफ़ इट मेक सेंस. तो मैं लेके 700 मेगाहर्ट्ज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इट गिव्स यू वाइड कवरेज. और अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कि 15 मेगाहर्ट्ज़ गालिबन इसमें स्पेक्ट्रम 15x2 है ना, वो मेरा ख्याल में FDD it could be 45x2 which means 3 times more. तो ज़्यादा ऑपरेटर्स ले सकते हैं, शायद उसमें ज़्यादा वो कुश्ती ना होती. अगर मज़ा आया तो और आ जाएगी, लेकिन अगर कुश्ती लड़ानी है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मुल्क का फ़ायदा पहुंचाना है तो उसके लिए it should be driven more. Thank you so much, everyone, for taking out the time and joining me in this conversation. I learned a lot. I hope our viewers also learned a lot. And now, when this happens, we'll actually have meaningful things to say and not pretend कि हमें समझ आ रही है क्या हो रहा है. So, thank you so much. I hope you had fun. And Thank you. I'll Thank see you you for guys the next time. Bye.